Hello, aspirants. I warmly welcome you all to the next episode of Sociology in 10 minutes. Today's episode number is 8. We are discussing the chapter 2, paper 1, positivism. इससे पहले 7 एपिसोड्स आ चुके हैं जहां पे मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स यहां तक कवर किए हैं. Please do have a look to that to develop a better understanding of the various concepts present in these two chapters. Let's come to the topic. If you look into positivism, the positivism, as we all know, sociology is a very nascent discipline. 200 years of history as far as the discipline is concerned is a very small amount. ह्यूमन लाइफ में 40 साल काफी ज्यादा लगते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन के अंदर 200 से 300 साल ज्यादा नहीं माने जा सकते हैं. 18वीं सदी के अंदर सोशल चेंजेस के कारण सोशियोलॉजी का गठन होता है. सोशियोलॉजी इज एस्टैब्लिश्ड. लेकिन जब ये एस्टैब्लिश हो रहा था तो ऑब्वियसली काफी चैलेंजेस फेस किए इसने अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन से, because all other social science were also studying the various subject matters prevalent during that time, and as a result the need for a new discipline which studies society itself was not required. But the early scholars, who can be called as fathers of sociology, because टर्म कॉइन किया अगस्ट कॉम्ट ने, डेवलप किया डरखाइम ने, और मैच्योर उसको करते हैं आगे जाके मैक्स वेबर, पार्सन्स जैसे लोग. फर्दर एक स्टेप आगे जाता है बाय सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट एंड फिनोमिनोलॉजिस्ट. इनिशियल फेज में जब इनको सोशियोलॉजी एस्टैब्लिश करना था, जब क्योंकि चैलेंजेस काफी थे सॉरी फ्रॉम both the social science and as well as the other disciplines, तो sociology initially science की तरफ tilt हो जाता है, so that if they get support of science and if they can explain that they are scientific disciplines, the other social sciences would not able to largely question their existence. और इस साइंस की होड़ के अंदर, रेस के अंदर एक थियरी डेवलप होती है, एक आइडियोलॉजी डेवलप होता है, एक मेथड डेवलप होता है जिसे बोलते हैं पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं, टॉपिक आपका जो सिलेबस में है पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक. आज के लेक्चर में हम पॉजिटिविज्म कवर करेंगे और कल के लेक्चर में मैं क्रिटिक को कवर करूंगा, बिकॉज क्रिटिक पे अपना अलग से क्वेश्चन बनता है, और पॉजिटिविज्म ऑब्वियसली देयर हैज बीन मल्टीपल क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द थिंकिंग ऑफ पॉजिटिविज्म. रिसेंट टाइम में नॉन पॉजिटिविस्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट दैट डजंट मीन पॉजिटिविज्म इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. अब मीनिंग क्या है पॉजिटिविज्म का? Positivism in sociology has been understood as a method and as well as ideology. किसी भी वर्ड के अंदर ISM लगा दिया जाए तो वो आइडियोलॉजी बन जाती है, SATION जेशन लगा दिया जाए तो वो एक प्रोसेस बन जाता है. पॉजिटिविज्म एक सोच भी है और एक तरीका और मेथड भी है. When you look into positivism from the perspective of an ideology, it looks like it is producing a knowledge based on evidences. Since the very evolution of positivism happened in order to make sociology a scientific discipline, the positivism largely advocates anything which the social scientist has to study has to be studied in a scientific manner based upon logical evidences present. Therefore, positivism clearly negates the role of values present in society, and it also advocates largely studying the structural process because they are more objectively real when compared to the individual behaviors and perceptions. लेकिन अगर मैं आइडियोलॉजी से बाहर जाऊं, which advocates sociology being a science based upon the theory of knowledge and empiricism, positivism एक मेथड के जैसे भी यूज किया गया. स्पेसिफिकली स्कॉलर सच एज आर के मर्टन, जो ट्रूली पॉजिटिविस्ट नहीं है, ना ट्रूली नियो पॉजिटिविस्ट है, बट इन बिटवीन इफ वी सी, पॉजिटिविज्म को एक मेथड के जैसे यूज किया आर के मर्टन ने, ना कि एक सोच के जैसे. बिकॉज पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी लेके वो कैसे नॉन पॉजिटिविस्ट वाले एस्पेक्ट्स इंकलकेट करते हैं इन इस थियरी ऑफ डिविएंस, इन इस थियरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप एंड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, including the Latin and manifest, where he recognized the hidden aspects which was completely rejected by positivism as they emphasized on evidence and empiricism. तो एक मेथड के जैसे भी यूज किया गया सोशियोलॉजी में, एक आइडियोलॉजी के जैसे भी. पहले आइडियोलॉजी के जैसे यूज किया गया था जिससे सोशियोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ, और बाद में जाके इसको मेथड के जैसे रीफ्रेम किया गया बाय स्कॉलर्स सच एज रॉबर्ट के मर्टन. इफ वी नाउ लुक the basic features or postulates or characteristics of positivism, positivism is an ideology based upon the following perceptions. First one, positivists believe that the total reality can be studied. But before explaining this point, I will like to highlight the second point first, fact value separation. Positivists believe that the social reality is made up of both fact and values. तो for example, शादी जो होती है एक फैक्ट है, लेकिन शादी के पीछे जो वैल्यूज है
रोमांटिक लव है, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है, सेक्रेड नेचर है या कल्चरल एस्पेक्ट है, वो एक वैल्यू है। क्योंकि सबके लिए शादी सेक्रेड नहीं है, न सबके लिए प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है, न सबके लिए रोमांटिक अफेयर होता है। To some, marriage is domestication of women. To some, marriage largely leads to exploitations, and to some, marriage largely leads to salvation. फैक्ट और वैल्यू दोनों होंगे रियलिटी में, बट द फैक्ट एंड वैल्यू होने के बावजूद दे कैन बी एब्सोल्युटली सेपरेटेड, और दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। और पॉजिटिविज्म बोलता है कि सिर्फ फैक्ट वाले एस्पेक्ट को पढ़ना है सोसाइटी में, वैल्यूज शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। जैसे ही वो ये पॉस्टुलेट देते हैं, जैसे आप डर्कहाइम देखोगे, उनकी थियरीज में उन्हें फैक्ट और वैल्यूज को सेपरेट किया है, कलेक्टिव कंसाइंस और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस को एक्सप्लेन किया है, बट वैल्यूज को साइड में रखा उन्होंने। तो separation of fact and value is strongly, adamantly advocated by positivists. And since they believe that the fact and value can be separated, they opine that the total reality can be studied. कैसे? अगर फैक्ट और वैल्यू दोनों चीज है तो शायद कंप्लीट रियलिटी पढ़ी ही नहीं जा सकती। इस सर्कमस्टेंसेस में अगर ये सेपरेट नहीं किए जा सकते, जो वेबर बोलते हैं, तो एक आदमी को ही पढ़ने में शायद पूरा डिसिप्लिन का लाइफ जा सकता है, बिकॉज इतनी वैल्यूज है एक इंसान में दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। लेकिन जब ये सेपरेट हो सकती है और सिर्फ फैक्ट पढ़ना है, तो मैं डेफिनेटली टोटल रियलिटी पढ़ सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में फिजिक्स पूरा का पूरा ग्रेविटी से लेके अर्थ से लेके एस्पेक्ट्स पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट पे चलता है। तो जो सब्जेक्ट फैक्ट पे चलते हैं वहां पे टोटल रियलिटी पढ़ना संभव है। और सिंस पॉजिटिविज्म एडवोकेटेड सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, दे सेपरेटेड फैक्ट एंड वैल्यू, एंड देयरफॉर दिस पोस्टुलेट कम्स टॉकिंग अबाउट टोटल रियलिटी हैज टू बी स्टडीड। जहां पे टालकड पार्सन्स ने अपनी सोशल सिस्टम थियरी दी थी, हाईलाइटिंग दैट हिज सोशल सिस्टम थियरी कैन help us in understanding every sub system। इन दोनों पॉस्टुलेट से बाहर आए तो पॉजिटिविज्म के कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जिसमें थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है यूनिवर्सल थियरीज। अब अगर सपोज मैं पूरी चीज नहीं पढ़ सकता तो मैं ग्रैंड थियरी नहीं दे सकता हूं, और अगर मेरी थियरी यूनिवर्सल नहीं है, इस कप के इस ग्लास के ऊपर लगती है लेकिन इस स्पून के ऊपर नहीं लगती है, तो डेफिनेटली मैं साइंस तो नहीं हो सकता, बिकॉज साइंस के अंदर यूनिवर्सलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हाईलाइटेड बाय वेरियस स्कॉलर्स सच एज मर्टन एंड अदर्स। अब लेकिन पॉजिटिविज्म बोलता है कि फैक्ट वैल्यू सेपरेट है, टोटल रियलिटी पढ़ी जा सकती है। देयरफॉर इफ यू कैन स्टडी द एंटायर रियलिटी, इफ यू कैन अरेस्ट द एंटायर रियलिटी, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन यू कैन गिव अ यूनिवर्सल थियरीज। तो वी सी ऑल द पॉजिटिविस्ट largely gave the grand theory. Auguste Comte gave his theory of evolution of society into theological, metaphysical and positive stage. Emile Durkheim gave the theory of division of labors, highlighting the society that how it moves from simple society guided by mechanical solidarity to complex and modern society guided by organic solidarity. The similar is the case with Talcott Parsons, or the similar is the case with Herbert Spencer. Therefore, यूनिवर्सल थियरी पे एम्फसाइज करते हैं, जितने पॉजिटिविस्ट है ग्रैंड थियरी देते हैं जो उनके हिसाब से पूरी सोसाइटी पे एप्लीकेबल है। इससे आगे बढ़े तो एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म इज दैट पॉजिटिविज्म ऑलवेज स्ट्रेसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस क्योंकि नेचुरल साइंस के बराबर मानता है सोशियोलॉजी को, तो इन्हें लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जैसे कॉज पता चल सकती है, डायबिटीज की कॉज क्या है, कार्डियक अरेस्ट की कॉज क्या है, या फोर्स या मोमेंटम की कॉज क्या है, या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शन की कॉज क्या है, वैसे ही सोशियोलॉजी ठीक उसी तरीके से साइंस होने के कारण कॉज इफेक्ट को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर दे ऑलवेज ट्राई टू एस्टैब्लिश द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, and they then generalize those relationship to the entire society, as the entire society has been studied because of separation of fact and value. This is how you connect the postulate. नॉर्मली लोग यहाँ पे रट्टा मार लेते हैं, थिंकर्स को कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि थिंकर्स ही आपके चैप्टर 4 में आते हैं और ये पॉजिटिविज्म चैप्टर 2 में पढ़ते हो, तो देयर इज अ इंटीग्रेशन विद सपोज। दिस इज हाउ वी टीच इन आवर बैच, वेयर एवरी एस्पेक्ट हैज टू बी इंटरकनेक्टेड एंड जस्टिफाइड टू मेक यू सी एंड फील दैट सोशियोलॉजी व्हिच आई ऑलवेज प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। यूनिवर्सल थियरीज के साथ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर डर्कहाइम की थियरी देखोगे सारी की सारी ही हाईलाइटेड द कॉज ऑफ
exactly what is the cause of suicide. When I say cause of suicide, he was talking about the cause of rate of suicide. सुसाइड की रेट किसी भी सोसाइटी में घटती और कम क्यों होती है, बढ़ती और घटती क्यों है, फॉर एग्जाम्पल, सो सॉरी, उसका कॉज बताया डर्कहाइम ने अपनी सुसाइड की थियरी में। क्या कॉज था? द सोशल फैक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। जितनी ज्यादा सॉलिडारिटी है सोसाइटी में उतनी कम सुसाइड होगी, लेकिन सॉलिडारिटी भी डिपेंड करती है रेगुलेशन और इंटीग्रेशन में, ऑन करंट, एंड दिस विल एक्सप्लेन इन इमाइल डर्कहाइम की जब सुसाइड करूं। बट एट द एंड रिलीजन का, सुइसाइड का और डिवीजन ऑफ लेबर के कॉजेस को स्टडी किया उसने। बट रिमेंबर, सुइसाइड के अंदर कॉज ऑफ सुइसाइड नहीं पड़ता है, कॉज ऑफ रेट ऑफ सुइसाइड पड़ता है। ऑल दीज आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। कोई भी पॉजिटिव स्कॉलर इन पोस्टुलेट्स को फॉलो करेगा ही करेगा, एंड ही विल गिव हिज एनालिसिस एंड थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज पोस्टुलेट। अब मुद्दा यह आता है कि जैसे जैसे सोशियोलॉजी मैच्योर होती गई, इनिशियली पॉजिटिविज्म ने काफी कंट्रीब्यूट किया, सोशियोलॉजी को एक्चुअली साइंस का दर्जा दे दिया, स्टेटस दे दिया। लेकिन जैसे ही 1937-39 जब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट या मैक्स वेबर प्रियर टू दिस स्कूल्स आती है, तो पॉजिटिविज्म की वीकनेस सामने आने लगती है, एंड दिस पॉजिटिविज्म कंप्लीटली गेट्स रिफ्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द राइज ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस सच एज फिनो एंड एथनो मेथोडोलॉजी। अब इस पॉजिटिविज्म की कंट्रीब्यूशन क्या रही? ऑल्दो वी मे रिजेक्ट द पॉजिटिविज्म टुडे इन कंटेम्पररी टाइम, बट हाउएवर दिस पॉजिटिविज्म ड्रास्टिकली एंड इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन। क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सबसे पहला कंट्रीब्यूशन पॉजिटिविज्म का था, वो सोशियोलॉजी को एस्टैब्लिश करने में था। When a need of studying society scientifically was demanded, the other social science disciplines refuted and largely stood in protest to the establishment of new discipline of positive science, that is sociology. As they advocated, they are already studying the power, religion, philosophy बोलती है हम religion पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलता है हम state पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल्स को पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, इकोनॉमिक सिस्टम को इकोनॉमिक्स। एक नया डिसिप्लिन क्यों पढ़ना है, क्यों बनाना है, क्यों उसे पढ़ना है? पॉजिटिविज्म जब सोशियोलॉजी को साइंस बना के छोड़ देता है, तो इजी एक्सेप्टेंस हो गया, नॉट ओनली अमंग द इंटेलेक्चुअल्स पीयर्स बट आल्सो इट वाज डे टू डे इट बिकेम मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एज वेल। तो पॉजिटिविज्म largely the biggest contribution was that sociology wouldn't have been established if the positivism wouldn't have been there. Second, positivists analyzed every aspect of society, starting from evolution of society to largely studying social change and economic aspects and psychological and social aspects such as religion and suicide, largely provided a new literature and a new outlook in understanding the various phenomena which hitherto were not understood from the social or सोसाइटियल पर्सपेक्टिव। तो थियरी बिल्डिंग बहुत की पॉजिटिविज्म में, चाहे सोशल सिस्टम टालकर पार्सन की थियरी हो, चाहे इमाइल डर्कहाइम की सारी थियरी हो, या टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कार्ल मार्क्स की थियरीज हो, ऑल्दो ही वाज नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट बट इज डेफिनेटली स्टूड टू द पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। अगस्ट कॉम्ट की थियरी ने हमें बताया कि कैसे सोसाइटी धीरे धीरे रैशनल होती जाती है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ माइंडसेट्स एंड आइडियाज, थियोलॉजी से पॉजिटिव साइंस तक। थियरी के साथ साथ पहली दफा साइंटिफिक स्टडी हुई सोसाइटी की, बिकॉज prior to positivism, the sociology did not exist, and as a result, different social science disciplines studied the entire societies in silos. कोई सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ रहा था, कोई फिलोसफी पढ़ रहा था, कोई इंडिविजुअल पढ़ रहा था। फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉजिटिविज्म, सोशियो वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड एज अ रिजल्ट ओवरऑल होलिस्टिक स्टडी ऑफ सोशल सोसाइटी वाज कंडक्टेड बाय सोशियोलॉजी व्हिच whose mother can directly be considered as positivism. इतना ही नहीं, पॉजिटिविज्म एक ऐसी चीज है कि खुद ने तो कंट्रीब्यूट डायरेक्टली किया ही किया, इसके जो क्रिटिक हुए वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोशियोलॉजी का मैच्योरिटी बना के गए। सो पॉजिटिविज्म इटसेल्फ नॉट ओनली एज अ थियरी कंट्रीब्यूटेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन्स, बट द वेरी क्रिटिक लेटर बाय नॉन पॉजिटिविस्ट ऑफ पॉजिटिविज्म contributed for the maturity of the discipline of sociology. तो मतलब पॉजिटिविज्म एक ऐसा फेज था जहां पे अपने आप को भी क्रिटिसाइज और खत्म करके इसने सोशियोलॉजी की मैच्योरिटी ही की। सो पॉजिटिविज्म हैज बीन इमेंसली इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू not only the establishment of sociology but also helping us understanding the social aspects from a more pragmatic and scientific perspectives. Those classical theories have still been used by scholars such as Sutton, scholars such as Peter Dickens, where they applied the positivist theory of Durkheim, Marx and others in understanding the ecological crisis in contemporary. Thank you.